So sums based on 2 dice. These are the last 4 sums we will be doing in probability. Okay. So come to question number 11 first. Now, first of all, 2 dice. You know what is 1 dice? 1 dice rolled, you very well know. 1 dice rolled means that the numbers, the possible outcomes can be 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. 2 dice means there will be one more dice which has 6 faces. Okay. And both the dice, if they are rolled simultaneously, if two dice are rolled simultaneously, then how many total outcomes are possible when 2 dice are rolled simultaneously? So total यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो total 6 into 6, 36 outcomes are possible in 2 dice. Okay, अब ये कैसे 6 into 6 36 आया? I'll tell you that. Okay, so see, समझो फर्स्ट डाइस पे आपको आया नंबर 1, सेकेंड डाइस पे भी आया 1, तो ये आपका एक आउटकम हुआ. ओके, समझो फर्स्ट डाइस पे आया 2, सेकेंड डाइस पे 1 ही आया है, ये सेकेंड आउटकम हुआ. फर्स्ट डाइस पे आया 3 और सेकेंड पे 1 ही आया है, तो दिस इज थर्ड आउटकम. फर्स्ट डाइस पे आया 4 और सेकेंड पे 1, फोर्थ आउटकम. फिफ्थ आउटकम, सिक्स्थ आउटकम. तो दीज आर द 6 आउटकम. जहाँ पे मैंने फर्स्ट डाइस पे सारे नंबर्स को चेंज किया और सेकेंड डाइस पे 1 ही रखा है कि 1 ही आ रहा है. ठीक है, ऐसे ही सेम मैं सेकेंड रो बनाऊंगा जहाँ पे फर्स्ट डाइस पे 1 है, सेकेंड डाइस पे 2 आया है. देन फर्स्ट डाइस पे 1 है, सेकेंड डाइस पे फर्स्ट डाइस पे 2 है, सेकेंड डाइस पे भी 2 आया है. यानी फर्स्ट डाइस पे 3, 4, 5, 6 एंड सेकेंड डाइस पे आया है 2, 2. See how I am writing the numbers. This is the trick in which you have to write. लेफ्ट साइड में आपको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और राइट साइड में नंबर को चेंज करना है. पहले 1, 1, 1 हुआ, फिर 2, 2, 2, देन इट विल बी 3, 3, 3, 3, 3. समझ रहे हैं? ठीक है, देन अगेन यू राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6 and here numbers will be 4, 4, 4, 4 and 4. Okay, then again numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this time the numbers will be 5, 5, 5, 5, 5 and 5, like this. So this is how you will get the outcomes. I'll paste the entire outcomes. 6 तक करना पड़ेगा आपको. ठीक है, this is the outcome. Can you see this? ये ऐसे आउटकम्स आएंगे. यू कैन काउंट कितने आउटकम्स है टोटल. 36 आउटकम्स. फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 1, फर्स्ट डाइस पे 2, सेकंड डाइस पे 2. वैसे ही लास्ट में फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 6, फर्स्ट डाइस पे 2, सेकंड डाइस पे 6, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 6, लाइक दिस. I hope everyone understood the outcomes. Outcomes समझ में आ गया? ठीक है, then we can start with the sums because these outcomes will remain same for all the sums. This is your sample set. This is your sample set. Okay, these outcomes will remain same for all the sums. Okay, understood here? No doubt here. Okay, now see the first question. Find the probability that there is same number on both. Same number on both. Okay, same number on both मतलब कहाँ कहाँ पे दिख रहा है ये?
if you see carefully, same number of both मतलब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 and 6 6. This is same number on both. Correct? So कितने आउटकम्स हुए? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हुए. And total number of outcomes कितना है? Total number of outcomes is 36. Okay. So my answer will be 6 upon 36. That is 1 upon 6. Okay. So answer will be 1 upon 6. No doubts here. Understood properly. Next. A product of 6. A product of 6. मतलब दोनों नंबर्स जो डाइस के ऊपर दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए. दो नंबर्स जो डाइस पे दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट कुड बी द आउटकम्स हियर? कौन से आउटकम्स ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है? यस एनीवन? करेक्ट क्रिश. यस. 3223 आएगा. करेक्ट. 6116 आएगा. करेक्ट. 6116. ओके. एनी अदर आउटकम? बस इसके अलावा कोई आउटकम पॉसिबल ही नहीं है. दीज आर ऑल द आउटकम पॉसिबल. तो 4 आउटकम्स पॉसिबल है. ठीक है. तो पहले लिखो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है. सो 2,3, 3,2. Just a second. Just a second. This screen is not working properly. I'll just fix it. So product 6 के लिए favorable outcomes are 3 2, 2 3, 1 6 and 6 1. So you have to write here 3 2, 2 3, 1 6 and 6 1.
Okay, these are your favorable outcomes. So your probability for product of 6 will be 4 upon 36, that is 1 upon 9. Yes, Rinav, this was the first sum. Okay, so ये हो गया हमारा second part question का. Let's come to the third part. Third part, they are saying a sum of 8. So on the dice you should find a sum of 8. मतलब दोनों numbers को add करके, जो dice के ऊपर दोनों numbers दिख रहे हैं उनको add करके 8 आना चाहिए. क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए दोनों को add करके. ठीक है, तो 8 आना चाहिए. तो ऐसे कौन से numbers है? सबसे सिंपल आपको याद आएगा 4,4. 4,4. ओके, बट मल्टीप्लाई करके 8 नहीं आना चाहिए, ऐड करके 8 आना चाहिए. सम ऑफ 8 बोला है, सम ऑफ 8. सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक नंबर मिला ना 8, तो उस पूरा डायगोनली उस नंबर को देखो तो उन सारे नंबर्स का सम 8 होता है. मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये आपको 4,4 मिला. ठीक है, अब ये सारे नंबर्स देखो यहाँ पे इस लाइन में, इन सब का टोटल क्या है? 8 है. 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 6 2, ये सब जो नंबर्स दिख रहे हैं. करेक्ट. टू डाइस में क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये डायगनली इनका सम सेम होता है. जैसे समझो मैंने अगर इसको चूज किया, ये वाले डायगनल को, तो इन सब का सम 4 है. ठीक है, अगर मैंने नेक्स्ट डायगनल को चूज किया यहाँ पे, तो 4 1 3 2 2 3 1 5, इनका सबका सम 5 है. ठीक है, इसके आगे वाले डायगनल को चूज किया तो इन सब का सम 6 है. फिर ये बीच वाले डायगनल को अगर चूज करूंगा तो बीच वाले डायगोनल का सम 7 होगा, उसके आगे वाले का 8 होगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12 आता है. ऐसे सबका सम फिक्स होता है. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन दे वांट मी टू फाइंड द सम, दे वांट मी टू गिव द नंबर्स हुज सम इज 8. तो 8 है तो मतलब मैं ये वाला रो यूज, डायगोनल यूज करूंगा. तो कितने नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने सेट्स है? 1 2 3 4 5. सो राइट योर फेवरेबल आउटकम्स फर्स्ट. Favorable outcomes is must, I am telling you. You will lose marks because of that if you don't write it. So 5,3, 4,4, 3,5 and 2,6. So sum of 8 के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 outcomes. So 5 upon 36 is your answer. Okay, so this sum is done. Let's come to the next question, that is question number 15. Question number 15 is again based on 2 dice. The sample set will remain the same. This sample set will remain the same for all the sum, as I said. Okay. Up 2 dice. Question number 15. What is the question? First one. The sum of the numbers is at least 10. The sum of the number is at least 10. At least 10 का मतलब क्या है? Sum of the numbers 10 होगा तो चलेगा, और 10 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा. मतलब 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा. The sum of the numbers be 10 11 12. 12 मैक्सिमम होता है, देखो दोनों डाइस पे 6 आ सकता है. 6 मैक्सिमम नंबर, तो 12 होता है सम. मैक्सिमम सम इज 12. ओके, तो एट लीस्ट 10 बोला है, मींस 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा. एट लीस्ट 10 का मतलब. ठीक है, तो 10 कहाँ पे दिख रहा है मुझे? 10 इज हियर. 6 4 5 5 4 6. करेक्ट. 11 कहाँ दिख रहा है मुझे? 6 5 5 6, ये 11 है. ओके, और ये 6 6,
ये 12 है, तो एटलीस्ट 10 के लिए कितने नंबर्स मिले? 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स है। ठीक है, राइट द फेवरेबल आउटकम्स। 5 6 and 6 6, these are your favorable outcomes। कितने फेवरेबल आउटकम्स मिले मुझे? 6 फेवरेबल आउटकम्स। ओके, so the probability of the sum is at least 10 is 6 upon 36, that is 1 upon 6। सी रीनव, उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? एटलीस्ट 10 होना चाहिए। क्या एटलीस्ट 10 होना चाहिए? सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेस ऑफ द डाइस, सम ऑफ द नंबर्स एटलीस्ट 10 होना चाहिए। मतलब ऐसे नंबर जिनका सम 10 है, जैसे कि यहाँ पे ये 6 4, 6 + 4 10 होता है। 5 4, 5 + 5 10 होता है। 4 + 6 again it is 10, like this। Sorry, there was some connection problem। So I was explaining that sum of the numbers is at least 10। ठीक है, एटलीस्ट 10 मतलब सम दोनों नंबर्स को ऐड करके 10 आना चाहिए। तो 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 is 10। एटलीस्ट 10 मतलब मिनिमम 10 तो होना चाहिए। 10 से ज्यादा भी चलेगा, दैट इज 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। 11 का मतलब 11 कैसे मिलेगा? 5 5 and 6 होगा तो 5 and 6 भी चलेगा वैसे।
So this was the first sub question. Someone had asked doubt, so I explained it again. Now let me do the next sub question. Sub question 2. Sub question 2. That is the product of the numbers is 8. Product of the numbers is 8. Product of the numbers is 8. Product मतलब multiply करने के बाद 8 आना चाहिए. Okay, now how can you get 8 by multiplying two numbers? So there is एक ही combination possible है. 4 into 2. 4 2 is 8 या 2 4 is 8. प्रोडक्ट 8 बोला है ना, और किसी तरीके से 8 नहीं आ सकता. 4 2 या 2 4. So these both numbers will be your answer. 4 2 and 2 4. करेक्ट. फेवरेबल आउटकम्स लिखो यहाँ पे. राइट द फेवरेबल आउटकम्स. Favorable outcomes. So 2 upon 36. That is, you will get the answer as, write the answer on your own. It will be 1 upon 18. Both numbers are even. So how will you do that? Both numbers are even. ऐसे numbers को circle करो या find करो where both numbers are even. Both numbers are even means, देखो odd numbers वाली लाइन तो कैंसिल हो जाएगी. जहाँ पे odd numbers है those lines will cancel. जैसे कि यहाँ पे 1 है, ये 1 की लाइन है, तो this will cancel because 1 is a odd number. Okay, 3 is a odd number, 3 will cancel. Okay, 5 is a odd number, 5 will cancel. Okay, सारे odd numbers की लाइन कैंसिल. अब वर्टिकली में भी दिस 1 लाइन विल कैंसिल क्योंकि यहाँ पे odd numbers है. 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या क्या बचा? 2 2, 4 2, 6 2, 2 4, 4 4, 6 4, and 2 6, 4 6, and 6 6. These 9 numbers will remain, and these 9 numbers are your favorable outcomes. Okay, so write your favorable outcomes. Write favorable outcomes. You have to write your favorable outcomes. So your final answer will be 9 upon 36. That is 1 upon 4. Okay, fourth one is not there. Next. Next is question number 26. Question number 26.
try to do it on your own. When two dice are rolled together, find the probability that the sum of the numbers on the uppermost faces of the dice is 4 or 5. The sum of the numbers is 4 या 5, मतलब दोनों चलेगा, ठीक है. Sum of the numbers is 4 और 5. ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए भी जगह रखता हूं मैं यहाँ पे. फर्स्ट वी विल राइट फेवरेबल आउटकम्स. सो सम ऑफ द नंबर्स कैन बी 4 और 5. तो 4 के लिए यहाँ पे आएगा 4 मतलब 2 + 2, 3 + 1, 1 + 3. This is the diagonal, the line where the sum of the numbers is 4. And 5 भी चलेगा, मतलब इसकी नेक्स्ट लाइन भी ले लो, 5 भी चलेगा. ठीक है, इसका सम 4 है और इन सबका नंबर सम 5 है. So how many outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 outcomes are possible. So write your 7 outcomes here. 4, 1. Copy from the diagram. Here the handwriting, some scribbling is getting, it's not clear here. Write all outcomes here. 3, 2. Write all outcomes. So total 7 outcomes. That means 7 upon 36 is your answer. Sum of the numbers on the uppermost faces is 4 or 5. Second part. Sum of the numbers on the uppermost faces is more than 10. Okay, sum of the numbers is more than 10. Also, there is a question here. What if they ask that sum of the numbers is 4 and 5? देखो 4 and 5 वो लोग पूछ ही नहीं सकते. 4 and 5 क्योंकि at the same time 4 और 5 साथ में, मतलब sum of the numbers का 4 भी होना और 5 भी होना at the same time नहीं हो सकता. जैसे अगर दो डाइस रोल किया, दो नंबर्स मिले, उनको ऐड करके 4 भी आएगा और 5 भी आएगा एट द सेम टाइम, वो पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए उनको और ही देना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, या तो 4 या तो 5, दोनों साथ में नहीं हो सकता. ओके, सो नेक्स्ट वन इज मोर देन 10. मोर देन 10 मतलब या तो 11 या तो 12. मोर देन 10 बोला है ना, तो या तो 11 होना चाहिए. मोर देन 10 है तो या तो 11 या तो 12. ठीक है, सम ऑफ द नंबर. तो 11 मतलब 5, 6, 6, 5 और 12 मतलब 6, 6. तो 3 ही आउटकम्स पॉसिबल है. 6, 5, 5, 6 एंड 6, 6. 3 आउटकम्स. सो 3 अपॉन 36. मोर देन 10 बोला है ना, तो 10 इंक्लूड नहीं होता मोर देन 10 में. नेक्स्ट इज लेस देन 6. लेस देन 6 बोला है, 6 से कम. तो लेस देन 6 में हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है. सम शुड बी, सम कैन बी 2, सम कैन बी 3, सम कैन बी 4, सम कैन बी 5. 1 नहीं लिखा मैंने क्योंकि 1 हो ही नहीं सकता, मिनिमम ही 2 होता है. करेक्ट. सो सम मतलब दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 हो सकता है, चलेगा 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा. 6 से कम होना चाहिए, मतलब 5 तक. तो मतलब ये हो गया 3 का. ठीक है, ये हो गया 4 के लिए और ये हो गया 5 के लिए. यस साची, यस साची. सो यहाँ पे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 नंबर्स आ रहे हैं मुझे.
थर्ड पार्ट के लिए आई एम गेटिंग 10 numbers less than 6. So 10 upon 36, that is 5 upon 18. Okay, next, the last question, question number 33. Question number 33. The two dice are rolled. What is the probability that sum of the numbers on the dice is a prime number? Sum of the numbers is a prime number. Prime number मतलब सब, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर. तो जो सम है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है. तो हमें काउंट करने पड़ेंगे. तो 2 के लिए एक आता है, 3 के लिए ये दो नंबर्स आते हैं, 5 के लिए ये चार नंबर्स आएंगे जिनका सम 5 है. ठीक है, और 5 एक प्राइम नंबर है. 7 के लिए ये बीच वाली लाइन आएगी पूरी, द सम इज 7. ओके, एंड 11 के लिए ये 5 6 और 6 5 वाली लाइन. These are all the outcomes where the sum is, these are all the outcomes where the sum is 2 3 5 7 or 11. That is the prime numbers. Okay, so right here 2 3 5 7 11 are prime numbers. ठीक है, then write the probability. Count the numbers: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So 15 upon 36, 3 5s are 3 12s are. We will get 5 upon 12. Second one is already, we have already done. Second one, sum of the number is 8. मतलब sum आना चाहिए 8. 8 आना चाहिए मतलब sum is 8 मतलब ये वाली लाइन, sum of the numbers is 8. तो कितने numbers है? Sum of the numbers is 8 means 5 numbers are there. So 5 upon 36. Okay, so we have completed 2 dice, and with this we complete the chapter probability. Okay, now I'll do the sums based on time of banking. The morning batch students, you have already done those sums, so you can stay in the meeting or you can leave also. It's up to you. Achha, you have a, do you have any other lecture after this?
लेट मी चेक वेट. टाइम सम सिर्फ 2-3 सम्स ही है टाइम के. सो वी कैन इजीली डू दिस. एक सम कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है. अच्छा, शाइनलेस मैसेजेस कम. लॉगिन एट 5:15. ओके, तो आई विल डू टाइम सम्स नेक्स्ट टाइम बिकॉज यू हैव इंग्लिश लेक्चर नाउ. सो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. विल डू टाइम सम्स नेक्स्ट टाइम.